اپنی زندگی کے اندر وہ اس نمک کو حلال نہیں کرتے، ان کو گلے کچھ میں پھینک دیا جاتا ہے، ان کو ابلیس کے ہاتھوں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آمین۔ ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا، جب داؤد نے جاتی جولیت کو مارا، جاتی جولیت نے لوہے کی بڑی تلوار نہیں اٹھائی، نیزہ نہیں اٹھایا، ڈھال نہیں اٹھائی، اس کے اندر جو باتیں تھی اس کو اس نے اس کی اپلیکیشن کی، گوپیہ چلانے کا تجربہ کار تھا، نشانہ اس کا بڑا ٹکانے پر لگتا تھا، اور اسرائیلی میں گوپی کے ساتھ جنگ لڑنے والے ہزاروں سپاہی پائے جاتے تھے، وہاں کا مشغلہ بھی تھا، جیسے ہمارے یہاں پنجاب اور بلوچستان میں تو یہی بات کرتا ہوں، گلیل چلانے کا بڑا شوق ہے، میں نے بھی ایک اچھی سے گلیل بنائی، باپ سے مار بھی کھاتا تھا، اور چڑیاں مارتے تھے گلیل سے۔ تو کیا کیا داؤد نے؟ اس کی زمین پر اس کی نظر گئی، کہاں گئی؟ اس کی زمین پر نظر گئی، ادھر ادھر وہ دیکھنے لگا، اور اس نے کیا کیا؟ زمین سے اس کو چند مٹی کے ڈھیلے ملے، پتھر نہیں کہہ سکتے، مٹی کے ڈھیلوں کو پتھر نہیں کہہ سکتے، یہ ترجمہ غلط ہے، اور اسے مٹی کے 5 ڈھیلے ملے، ٹھیک ہے؟ اس نے گھور کیا، کیا تھی؟ مٹی زمین سے اٹھا، اور زمین سے اٹھائی ہوئی اس ڈھیلے سے جاتی جولیت کو اس نے جھانکا، اور اس نے زمین کے نمک کو اپنی زندگی میں رہتے دم تک اس نے اس کو حلال دیا، ہمیں خراب ہونے نہیں دیا۔ آج پھر ایک اور بات جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ یہ نمک چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے، اس چیزوں کو برباد نہیں ہونے دیتا۔ میری اور آپ کی زندگی میں جب نمک موجود ہے تو ہم دنیا کے لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو برباد نہ ہونے دیں، ابلیس کے ہاتھوں میں بربادی میں پڑنے نہ دیں۔ ہم اس نمک کو اپنی زندگی میں حلال کریں، اس نمک کو اپنی زندگی میں اس کا استعمال کریں، اور لوگوں کو بربادی سے کیا کریں؟ بچائیں۔ ایسی شخصیت ابراہیم، جب اس کا بیٹا لوط اور اس کے خاندان کے لوگ سدوم اور عمورہ میں بڑے تھے، خدا سدوم اور عمورہ کو کیا کرنے لگا؟ ہلاک کرنے لگا، برباد کرنے لگا، اور آسمان سے گندر جب اسے پھینکنی تھی تو یہ بات ابراہیم کو پتہ چلی۔ ابراہیم کی زندگی میں خدا کے عہد کو نمک، ہم نے پڑھا نا خدا کے عہد کے نمک، ہم نے پڑھا نا داؤد کو سلطنت دینے کے لیے، اس کے بچوں کو سلطنت سونپنے کے لیے خدا نے نمک کے ساتھ کیا بنا؟ عہد باندھا داؤد کے ساتھ، اور یہ عہد خدا نے ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ میرا عزیز رشتہ دار تباہ ہو جائے گا، اور اس نے مناجات کا آغاز شروع کیا۔ آج تو ہم مناجاتیں کرتے ایک ڈھیلی اور سست ہاتھوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب ہم خدا کی حضوری میں مناجات کریں تو خدا کے ساتھ ہم بلی جائے، تعظیم کے ساتھ جائے، خدا سے کہے اے خداوند مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں تجھ سے بات کرنے کی ضرورت پھر کر رہا ہوں، یہ ایک لمبا حوالہ ہے۔ اسے کہا اے خدا تو سدوم اور عمورہ میں اس کو ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ خدا نے کہا ہاں۔ اس کا اگر وہاں 5 راس بات مل جائے، کہنا نہیں چھوڑ دیا، کرتے کرتے 15 جو ہے وہ یوز ہلکا کرواتا رہا، خدا سے پلڑی کو کیا کراتا رہا؟ ہلکا کرتا، کم کرتا رہا، اور کہا تھا کہ میں 10، اسے اگر 10 بھی اگر ملے، کہا کہ پھر بھی میں
सदोम और अमोरा को हलाक नहीं कर रहा। मेरी चीजों जो जमीन का नमक है वो दुनिया को, लोगों को, जीज रिश्तेदारों को हलाकत से, मौत से बचाते हैं, मनाजाती करते हैं, इल्तिजाई करते हैं, उनका नाम ले लेकर क्या खुदा तुमको बचा, और ये 10 तक खाता है। लेकिन वहां 10 लोग भी ना मिले। तब खुदा ने कहा जो तूने मनाजात किया है तेरी मनाजात के खातिर मैं ऐसे करूंगा, और 2 फरिश्तों को भेजा और उन्होंने लूत को, उसकी बीवी और उसके दोनों बेटियों को वहां से लेकर निकल गए। ये है जमीन का नमक, ये है खुदा के कलाम की कुव्वत, ये है वो खुदा के कलाम की नमकीनियत जो हमारी जिंदगी में पाई जाती है। और जब हमारी जिंदगी में ये नमकीनियत पाई जाती है तो हम बहुतों को बचाने के सबब बनते हैं और खुदा के फरिश्तों को मुतहर्रिक कर देते हैं। आमीन। अब देखिए कुल 4 उसकी 6 आयत में हर मसीह तो नई पैदाइश पा चुका है और उसकी जिंदगी के अंदर जमीन का नमक है, उसके बदन के अंदर रूहानी तौर पर नमकीनियत है, उसके कलाम के अंदर नमकीनियत पाई जाती है। उसका मजा हमेशा तक जब वो कलाम के साथ और खुदा के साथ, उस नमक के अहद के साथ वो जुड़ा रहता है, तो नमकीनियत उसके रूह में, उसके बदन में, उसके जहन में, उसके सुख में, उसके हालात में बढ़ जाता है और उसका बजारा फिर आम सरे आम करता है। बड़ी फलू से क्या फरमाते हैं? तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल। हाँ, कुल 4 बाब है, कुल से फिलिपियन है, कुल 4 बाब है, 6। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना चाहिए। हमारे अंदर जो कलाम है, कलाम गुफ्तगू को भी कहते हैं, बातचीत को कहते हैं, कलाम खुदावंदी मुकाशवा को भी कहते हैं। तुम्हारे अंदर से जो बातें निकलती हैं वो पुरफजल हो, नमकीनियत उसके अंदर कसरत के साथ हो, ताकि तो हर शख्स को जवाब दे सके। मेरे चीजों लोग आपके पास आए, आपकी खुशहाली को देखिए, आपके इत्मीनान को देखिए, आपके बच्चों को देखिए, उनकी खुशहाली को देखिए, आपके पहनावे को देखिए, आपके रहन सहन को देखिए, और आकर आपको कहे, कोई शख्स कहे कि आपके पास इतना इत्मीनान क्यों? आप उनको कह सकते हैं मेरी जिंदगी के अंदर जो खुदा ने फरमाया है वो जमीन का नमक, वो यीशु मसीह का नमक। मैं क्योंकि इस्राएली और अरबी लोग जब आपस में बैठ के खाना खा लेते, यानी कि एक दूसरे का नमक खा लेते, मुहावरा भी एक दूसरे का नमक खा लेते, तो वो दुश्मन, इवन उनका दुश्मन भी उस खाने में अगर शरीक हो जाता तो वो लोग उसके साथ दुश्मनी ना करते, बल्कि अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लेते, इसलिए कि वो दुश्मन भी जिसने नमक खाया जाता है उस नमक को हलाल रखना चाहता है, उसको खराब करना नहीं चाहता। इसी तो हम जब यीशु मसीह की मेज में शामिल हो चुके और उसके मेज में शामिल होकर हमने उसकी मेज से खाया और पिया, जब हमने उसके टेबल से, उसके दस्तरखान से, उसके खाने से हमने खाया और पिया है, तो फिर हम हमेशा हमेशा के लिए उसकी क्या बन गए हैं? दोस्त बन गए। और खुदा यीशु मसीह की भी दोस्ती हमारे साथ झुकी तू, और कभी भी उस अहद के नमक की हम खराबी नहीं चाहेंगे अपनी जिंदगी या किसी के साथ। हालेलुया। इसलिए जब गैर कौम के लोग
उस दस्तरखान में से खाकर दोस्त बन जाते हैं, तो फिर हम मसीह के दस्तरखान में से खाकर उसका नमक खाकर फिर क्या है, हम उस नमक को क्या करें, उस नमक के पास नहीं करें, उस नमक को अपनी जिंदगी में हिस्सा बनाए। उस नमक के साथ जो दोस्ती शख्स के साथ हुई है, खुदावंद के साथ हुई है और खुदा ने हमारे साथ की है, इसीलिए उसने कहा कि मैंने तुम्हें अपने नौकर नहीं बल्कि मैंने तुम्हें अपना क्या कहा है, दोस्त का। आमीन। ये है वो नमक जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि तुम जमीन का क्या हो, नमक हो। अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाता है, तो इसके कि वो बाहर फेंका जाए। जैसे आदम और हवा को बाहर फेंक गया बागेदन से और वो शैतान के पांव के नीचे रोका गया और उसका असली दुश्मन मौत उन पर काबज है। इस नमकीन आपने खुदा के कलाम, खुदा के कलाम की तालीमात, पानी बात की तालीमात उसका अपनी जिंदगी में रखते हुए मैंने बताया था कि हम उस नमक को जिसका मजा जाता है कैसे नमकीन कर सकते हैं। वो दुनियावी तौर पर तो नहीं कर सकते, लेकिन रूहानी तौर पर हम खुदा प्रस्ती करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसकी नमकीनियत को कायम रख सकते हैं। और कोई भी शख्स फीकी हुई फीकी चीज खा, अंडे की सफेदी का क्या मजा, तो जब उसमें नमक छिड़का जाए तो फिर उसका मजा है, इसके अलावा कोई मजा नहीं। हालांकि उसके अंदर जो यॉक है उसका बड़ा टेस्ट है ना, उसमें नमक है, लेकिन उसके शरीर के अंदर नमक नहीं। बोले चीजों मैं और आप आज अपने आप को ये जाने, मैं और आप जमीन का नमक, अरे मैं और आप क्या है, नूर। मैं और आप क्या है, जमीन का नमक है। और जिस उसी कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, ये जमीन के नमक, और फिर मैं और आप दुनिया के नूर। और ये कभी भी ये रखे हमारी रोशनी आत्मा के सामने चमके, हमारी नमकीनियत का कलाम ऐसा हो कि हम दूसरों को जवाब दे सके और उनको यीशु के कदमों में ला सके और अपनी नमकीनियत को हम दूसरों पर जाहिर करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बड़ी बरकत दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।